I do want from Prime Minister Modi that please intervene in this. Now it is time. हैमदान में कोई दिक्कत नहीं है, तेहरान बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा है, लेकिन हाँ कौन? I do want from Prime Minister Modi that please intervene in this. Now it is time. हाँ, तो नॉर्थ ऑफ ईरान की तरफ वो लोग जाएं, ताकि नॉर्थ ऑफ ईरान में हमला नहीं हो रहा, हमला सिर्फ इधर की तरफ ही हो रहे हैं, तेहरान की तरफ, और इधर मतलब तेहरान, शिराज, इस्फहान, मशाद, तो ये सब है, तो नॉर्थ ऑफ ईरान की तरफ आप जाएं। ईरान के किनारे प्यार को हमने पाया, रख कहते जहां से दिल को फिर बसा। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है। हाय dude, नमस्ते, मेरा नाम फाइज़ा है। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है, पिछले 2 वीडियोस से मैं सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि ईरान के अंदर जो सिचुएशंस हैं, ईरान के अंदर जो हालात हैं फ़िलहाल जंग को लेके, वॉर को लेके, उसमें अभी हमें क्या क्या पता लगा है, हम आपके साथ ये साझा करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो कॉल नहीं लग पा रही, दूसरा वहाँ पर एक नया रूल आया है, और नया एक तरीके से आप इसको कह दो फतवा आया है, नए तरीके का इंस्ट्रक्शन है कि ईरान का कोई भी नागरिक, एनी सिटीज़न ऑफ ईरान, डोंट लीक एनी काइंड ऑफ कंट्री सिचुएशन आउटसाइड। हमसे जो लोग बात करते हैं वो ये इस चीज़ के लिए बाध्य हैं कि वो किसी भी प्रकार की वहाँ का कोई फ़ोटो बाहर नहीं भेज सकते, दूसरी कंट्रीज़ में नहीं भेज सकते, वहाँ की किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो चीज़ न्यूज़ में चली आ रही है वो तो देखो सबको पता ही है, लेकिन एक चीज़ और इसमें मैं आपको बता दूं, जो सबसे वर्स्ट सिचुएशन हो गई है वो तेहरान के अंदर हो गई है। तेहरान राइट नाउ एवरीवन इज़ गेटिंग इवैक्यूएट। इसी सिलसिले में क्या हुआ कि बहुत सारे न्यूज़ ग्रुप ने, मीडिया ग्रुप ने हमसे कांटेक्ट किया और फ़ाइज़ा से बात करी, फ़ाइज़ा का इंटरव्यू करा इसी संवाद में कि भाई क्या सिचुएशन है ईरान के अंदर। तो सबसे पहले आप वो इंटरव्यूज़ देखिए। Okay, so it's from the last some days that both Israel and Iran are under war, and of course I don't feel good because definitely even I'm pretty sure that this war can end. Maybe this days, but the thing is that after war, unfortunately my country is supposed to experience the worst economic situation, and the thing that I'm worried about the most is about the safety of my people during these days. Although Israel is the target of politically sensitive locations, some people died, and so I'm feeling very much sad about this thing. I don't want this situation continue anymore. And it was 2 nights ago that we called my parents through the SIM and not through any kind of social media because everything is banned there now. It's kind of something that war is started between Ukraine and Iran. What's the name? Faiza, would you like to make a request to the Indian government for the Iranians? Yeah, I really. First of all, I have to say this thing that since the first, I like Prime Minister Modi a lot, and in my idea, he can be a good example of a proper Indian person, Indian man. So, and I know that he is so kind. So I really want to say this thing to Prime Minister Modi that please do intervene in this thing, and please do convince these 2 countries, my country India and Israel, not to continue this war, because this war is not in no side's favor, and definitely both sides, definitely both India, both Iran, my country, and Israel will experience so much destruction and so much bad consequences after the war.
So I do want from Prime Minister Modi that please intervene in this. Now it is time that you and attachment toward Prime Minister Modi. I love him since the first, and in my idea, he is the very much excellent example of a pure Indian man. I do request from Prime Minister Modi that please do intervene in this situation. Please convince these two countries, Iran and Israel, not to continue this war, because this war is in no size figure, and definitely for sure during war, after war, both countries will experience so much destruction. तो दोस्तों ये जो इंटरव्यूज़ थे ये आप देख सकते हो, ये पीटीआई जो कि एक न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने करा है, आज तक ने करा है, जी न्यूज़ ने करा है, और आने वाले समय में शायद और भी जो है न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो हमसे कांटेक्ट करेंगी और बात करने की कोशिश करेंगे। जितना हमें पता है हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है लोगों तक इन्फॉर्मेशन साझा कर पाएँ, किस संदर्भ में साझा कर पाएँ कि भाई ईरान के अंदर किस तरीके के हालात हैं, ना कि हमें कोई ऐसा ना कोई पर्सनल चीज़ें पता है, ना कुछ ऐसा पता है कि भाई कहाँ अटैक हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा। हाँ, सुनने में तो बहुत जगह आ रहा है, जैसे कल ही मेरी बात हुई थी, मेरा एक फ्रेंड है, वी हैड अ फ्रेंड इन अर्दबिल एक जगह है ईरान के अंदर, तो उन्होंने कहा कि अर्दबिल में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि अर्दबिल में तो इंटरनेट भी चल रहा है, और लेकिन जहाँ पर जो कि स्ट्रेटेजिकली मिलिट्री साइट्स हैं, इनमें से एक हैमदान भी है, तेहरान है, इस्फहान है, मशाद है, तबरेज़ है और शिराज़ है, तो वहाँ पर तो भाई अटैक हो ही रहे हैं। और रेगुलर अटैक होने की वजह से कुछ जो लोग ज़्यादातर रात में जाके अपने घरों में, ना जो बिल्डिंग में रहते हैं अपने घरों में नहीं सो के वो पार्क में जाके सो रहे हैं, जो कि एक सेफ़ प्लेस है। तो माहौल बहुत ज़्यादा टेंस है और लोग कम से कम रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं। Today in our cafe we had different media who came to interview with us, and I talked about the current situation of Iran. I said that everything is very much tense and the people are under all the people. It is not possible that I said that only the Tehranian, but no, that's wrong. We are all country mate, okay? So it is like this, that even if there's nothing like a war, there's nothing like a war effect in any town or in any in a special town or in a special city of Iran, it does not mean that those people are not worried. No, of course they're worried, because they're worried about their country, they're worried about the country people. So all of the people are under this mental pressure and stress. And as my husband said, unfortunately, Tehranian people has been said to evacuate Tehran because the situation in Tehran is getting worse than before. Even I was checking my Instagram and I was saying that some people are uploading their stories in which it is being shown that they are going from Tehran to the other cities. So the thing which is clear is that for some days we will see such thing, and even maybe the things get worse, but finally the war will end. And I don't know when that time, what is that time, I don't know anything. तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना फ़ायज़ा को कि भाई जंग होगा, जंग का भी सीज़ फायर होगा, रुकेगी जैसे इंडिया पाकिस्तान की रुकी थी, बट ये पता नहीं कब रुकेगी, और इस बीच में लोग कितने ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे ये भी नहीं पता कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे। और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पता क्या हुआ है, ईरान के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस आने वाला है, बहुत बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस आने वाला है। मेरा एक फ्रेंड है, आपने शायद देखी होगी वो वीडियो जिसमें मिस्टर हिंदी करके है, जब मैं पहली बार ईरान गया था। तो जो मिस्टर हिंदी है भाई, वो एक बहुत ही मतलब वैसी जॉब करते हैं जैसे कि किसी उसमें बाइक के शोरूम में कर ली, इस तरीके के मतलब वो जॉब करता है लड़का, और शादीशुदा है। तो उससे मेरी बात हुई थी, उससे उसको मैसेज भी किया था उसने मुझे, और उसने कहा था कि लोगों की यहाँ पे जॉब्स जा रही हैं, मतलब इकोनॉमिकल क्राइसिस हो गया, क्योंकि तो वॉर की सिचुएशन में लोगों में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। वॉर की सिचुएशन में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, जिसकी वजह से लोगों की जॉब्स जा रही हैं। और ये बात नहीं है
कि बस ये जंग ख़त्म हो गई और सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई जंग तो ख़त्म हो जाएगी जब होगी, लेकिन जो लोगों की इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने वाली हैं ईरान के अंदर, वो कोई सोच भी नहीं सकता, इतनी बुरी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और अभी ये भी पता लगा है कि हैमदान के अंदर स्कूल के ऊपर भी हमला हुआ है। आप ये समझ लीजिए स्कूल की बिल्डिंग्स पे भी हमले हो रहे हैं। तो मैंने जैसे कि पहले कहा था यार, जंग का कोई किनारा नहीं होता, वो जैसे फैलती है समुद्र की तरह वो फैलती जाती है। चाहे कोई भी देश कितना भी कह ले कि हम सिविलियंस को अटैक नहीं करेंगे, लेकिन सिविलियंस जाहिर सी बात है भाई मरते ही हैं। और ये सिर्फ हैमदान में नहीं, ये शिराज में भी हुआ है। फिर से अटैक, जो मैंने आपको पहले फ़ोटो दिखाई थी, फिर से अटैक हो गया। तो ये सारी चीज़ें अभी बढ़ रही हैं और बढ़ती रहेंगी। और मुझे जैसे जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको बताता रहूँगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था, रेप्टेल। उसके लिए इस लोगों ने कहा था कि दिवाकर भाई उसका आप लिंक दे दो, मैं इस बार डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपके जितने भी परिजन हैं और उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई परिजन है जिसको जो इंडियन है, तो आप उसको बताइएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ ऑफ ईरान की तरफ जाए। राइट, नॉर्थ ऑफ ईरान इज़ सेफ। हाँ, तो नॉर्थ ऑफ ईरान की तरफ वो लोग जाएं, ताकि नॉर्थ ऑफ ईरान में हमला नहीं हो रहा। हमला सिर्फ इधर की तरफ ही हो रहे हैं, तेहरान की तरफ, और इधर मतलब तेहरान, शिराज, इस्फहान, मशाद, तो ये सब है। तो नॉर्थ ऑफ ईरान की तरफ आप जाएं। साउथ ऑफ ईरान, इवन साउथ ऑफ ईरान इज सेफ। Not necessarily. हाँ, There are some sensitive. हाँ, कुर्दिस्तान की तरफ आप जा सकते हैं, कुर्दिस्तान सेफ है। Some part of it. हाँ, कुर्दिस्तान की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरीके की आप बात बता सकते हैं, क्योंकि कुर्दिस्तान में मेरे फ्रेंड हैं, उनसे मेरी बात हुई है। तो कुर्दिस्तान में इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं है। इवन जैसे मैंने आपको बताया ना, अर्दबिल में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अर्दबिल वो सब चीज़ें ना वो लगी हुए हैं, वो अलग ही हैं, और ना उनमें कोई मिलिट्री साइट है। ऐसा कुर्दिस्तान में भी कोई ईरानियन मिलिट्री साइट नहीं है। तो आप जो आपके फ्रेंड है, फैमिली है या इंडियन वहाँ कोई रहता है, तो उसको ये बताएं कि भाई कुर्दिस्तान की तरफ जाओ आप। Look, if I am far from my country, it does not necessarily mean that, yeah, I'm not worried about it. I think it's very much out of nationalism. I mean, out of being a nationalist or country lover, if you do not feel worried about your country and country people. I am in depression enough, I am in tension enough, and look, there are different news sources. If I want to check any news, I myself go and search in the internet. I will surf my net to check some news. So I don't need that you as my dear friends, I know maybe you're just sending that yeah, I know the situation, but I'm not like this. I'm not like this, that I just check the news and yeah, so let it go. It is not like this. I know that most of you send me messages to make me well informed, and to that I say to my parents, to say to my family, say to my relatives, say to my friends that yeah, the situation is this, and so you want, I mean, your core intention is to make me informed, to help me, but it is not help. It should not help. You make headache for me. Some of you really, some of our friends come to my diary and continuously ask that, yeah, what do your family feeling? Is your family sick? Please do not ask this question, because it is like a headache for me. It is, it literally destroys my day, and these days I really do not want to check my directs, because most of my directs is like this, that they are asking about my family situation, and or they are sharing some war news to me. I don't want it. Thank you. I don't want it. The news sources are available, and if I want, I can check it. My husband can say to me, please understand us here in the situation, and respect those people who are in the war and who are under the influence of the war. तो दोस्तों, जैसे कि फायज़ा ने कहा कि हाँ उससे इस तरीके के प्रश्न कर रहे हैं, तो भाई मत करो। खैर, इंडियंस को चुल बहुत होती है, और इसी चुल का एक मैं आपको बता देता हूँ। चुल नहीं है यार, कंसर्न भी है। कुछ लोग ज़्यादा ही मतलब रहते ही है भाई, लोग पसंद करते हैं, लोग प्यार करते हैं, तो वो कंसर्न होते हैं आपके प्रति। उस चीज़ को, उस भावना को मैं समझता हूँ,
और बहुत सारे लोगों के पिछली वीडियो में कमेंट्स आई हैं कि फ़ाइज़ा की फैमिली को आप इंडिया बुला लो। ये बात आपने ही नहीं, मेरी बहन जिसको आपने देखा है सहारनपुर रहती है, मेरा भाई जो देहरादून रहते हैं, उन्होंने सबने ये कहा, मुझसे इंसिस्ट किया कि किसी भी तरह उसकी फैमिली को यार इंडिया बुला लो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? एयर स्पेस बंद है, कोई ज़रिया नहीं है। दूसरा, एज अ सिटीज़न ऑफ एनी कंट्री आपकी पहली ड्यूटी अपनी कंट्री के प्रति है। कोई भी जंग हो जाए, कुछ भी सिचुएशन हो, देश छोड़ के भागना इज़ नॉट एन ऑप्शन। और वो मैसेज भी गलत जाता है कि भाई आप अपना देश छोड़ के भाग गए हो, ऐसी सिचुएशन में आप वहीं रहो, उसी सिचुएशन का सामना करो। मेरा कहना ये है, मेरे बस की होता तो मैं ज़रूर उनको बुला लेता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कहीं से कहीं तक भी। लेकिन हाँ, ऐसी बात नहीं है कि भाई इतनी वॉर इतनी ज़्यादा एक्सटेंड हो गई कि हर जगह बमबारी हो गई है, भैया सीरिया बन गया है ईरान, तो ऐसा भी नहीं है। ये कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ही बात चली जाती है। गांव की तरफ जाओ, जैसे कि हमारा जो फ़ाइज़ा का जहाँ दादी रहती है, नानी रहती हैं, तूसेकान, वहाँ पे सब कुछ शांत है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो लोग वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन वहाँ जाने में थोड़ी प्रॉब्लम है कि बाय रोड आप जाएंगे तो आपको पता ही नहीं कहाँ से क्या हो जाए। लेकिन हाँ, सेफ जोन भी है वहाँ पे, तो ऐसी बात नहीं है कि मैं उन्हें इंडिया बुला लूँ, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो पॉसिबल नहीं है। इस पे एयर स्पेस बंद है भाई, और कोई रास्ता नहीं है। दूसरा, इंडिया का वीज़ा मिलना इतना कोई आसान नहीं है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हाँ, हम लोग उनके संपर्क में, रेगुलर कांटेक्ट में हैं। हम लोग ना कि सिर्फ फ़ाइज़ा की फैमिली के, मैं अपने फ्रेंड्स के कांटेक्ट में भी हूँ, मेरी उनसे भी लगातार बात हो रही है। जैसे कि मैंने मिस्टर हिंदी के बारे में बताया, वो भी कह रहा है कि भाई हैमदान में कोई दिक्कत नहीं है, तेहरान बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा है। लेकिन हाँ, कौन? अच्छा अच्छा, ये ट्रांसलेट करेंगे भैया, आप ट्रांसलेट करोगे ना? अब बताओ क्या पूछना जी, है। इस वॉर पे क्या कहना चाहिए, क्या स्थिति है इनकी, और आपकी फैमिली वहाँ पर है। द सेम क्वेश्चन दैट दे आस्क, ओके। Well, it's not about some days that both countries, Israel and Iran, are at war, and तो दोस्तों, जैसे कि अभी आपने सुना था, तो वो ANI न्यूज़ वाले थे, जो कि आपने देखा भी है। अब वो रात में करीब मेरे ख्याल से अभी ऑलमोस्ट 11 o'clock एंड दे सडनली केम अपीयर, पता नहीं कहाँ से वो लोग आ गए और कहने लगे कि, मैंने उनसे कहा कि भाई सुबह कर लेते हैं, कैफ़े पे इंटरव्यू कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल है। because here at home we don't have the situation. हाँ, घर में ऐसी सिचुएशन नहीं है कि भाई यहाँ पे कोई इंटरव्यू वगैरह करूँ मैं। तो मैंने उनसे कहा कि कैफ़े पे कर लेना, लेकिन वो नहीं माने। वो कह रहे कि नहीं, ये इंटरनेशनल है, सारी न्यूज़ रात में चलती है, आपने सबको दे दिया, सबको इंटरव्यू दे दिया, आप हमें क्यों नहीं दे रहे हो। मैंने कहा चलो ठीक है, ले लो यार, इंटरव्यू ले लो। तो इस तरीके से मतलब मीडिया का आगमन हो रहा है बहुत ज़्यादा, और जितना पॉसिबल है, जो पॉसिबल चीज़ें बता सकते हैं हम लोग वही बता रहे हैं। और वो लोग भी यही सब पूछ रहे हैं कि भाई आपको कैसा लग रहा है। आपको पता है, मीडिया ये पूछती है आपको कैसा लग रहा है, आपके परिवार से बात हुई है क्या, फ़िलहाल ईरान में लोगों का क्या कहना है। तो ये सब चीज़ें हैं भाई, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वही मैंने इंटरव्यू में बताया, फ़ाइज़ा ने बताया। और हमने एक अपील और करी है कि भाई किसी तरह इंडियन गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करके और इस मामले को शांत कर दे, जो कि मुझे पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का अभी इस मामले में कोई लेना देना है नहीं। और दूसरा, क्योंकि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है, तो इंडिया इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकता। इंडिया किसी भी रूप में, मुझे लगता भी नहीं है कि किसी को भी, ना ईरान को ना इजराइल को समझा सकता है कि भाई आप वॉर रोक दो, क्योंकि अभी इंडिया कुछ उस स्टेट में है नहीं। तो फ़िलहाल की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, मैंने आपको सब बताई है। आगे भी जैसे जैसे हमें चीज़ें पता लगती रहेंगी। फ़िलहाल बात यह है कि हम ईरान और इजराइल के बारे में बताएंगे आपको कि होने क्या वाला है और किस तरीके की सिचुएशन आगे रहने वाली है। फिर से कहूँगा दोस्तों, हम फ्रेंचाइज़ी फॉर्म के लिए बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप फ्रेंचाइज़ी फॉर्म भरिए, श्रीराम पर्शियन कैफ़े की मेंबरशिप लीजिए। आपको पूरी डिटेल्स के साथ मैं समझाने वाला हूँ आने वाले कुछ दिनों में कि फ्रेंचाइज़ी लेने से
क्या आपके बेनिफिट्स होते हैं। आपको एक बात और बता देता हूँ, आप देखो कितनी ज़्यादा सरकारी नौकरी निकल रही है। देखो जिसने करनी होगी वो करेगा, डेफिनेटली करेगा। प्राइवेट नौकरी जिसने करनी होगी वो करेगा, बट बिज़नेस पर्पस के लिए जिसके दिमाग में 1% भी है कि यार मैं बिज़नेस भी करूँ अगर मैं जॉब करता हूँ, उसके लिए श्री राम पर्शियन कैफ़े से बड़ी और बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं होने वाली। जो लोग मेरे कैफ़े पे विज़िट कर चुके हैं वो खुद इस बात को मान चुके हैं। मीडिया में सारी बातें चलती हैं, क्यों चलती हैं? क्योंकि भाई इसमें स्कोप है, वाकई में बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो पहले फ्रेंचाइजी फॉर्म भरिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, उसको भरिए, मेंबरशिप लीजिए, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी, हम लोग फिर आपसे बात करेंगे और आपको उस तरीके से हम लोग समझाएंगे कि हाँ, आपको दिखाई देगा कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है इसके अंदर, आप कितने मीडियम से पैसे कमा सकते हो। एक मीडियम नहीं है कि भैया कैफ़े खोल लिया और आप कैफ़े से अर्निंग ही कर रहे हो और आप कैफ़े की अर्निंग में सीमित हो गए, चाहे वो 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख, 5 लाख, जितनी भी है। यहाँ पर आपको 3 मीडियम मिलेंगे। ऐसा फ्रेंचाइजी मॉडल ना इंडिया में अभी तक आया है ना आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है। टेस्ट से लेके, मॉडल से लेके, एम्बियंस अंदर और किस तरीके से चीज़ें हम लोग प्रेजेंट करते हैं उससे लेके हम आपको क्या क्या देते हैं, प्लस जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है या गेस्ट का सेटिस्फेक्शन है, उन सारी चीज़ को लेके हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, पूरी तरीके से लगे पड़े हैं। तो दोस्तों आप फ्रेंचाइजी फॉर्म भरिए, श्री राम पर्शियन कैफ़े की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कीजिए। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ओम नमो नारायण।